Friends, good morning. This is Mahbub here and I welcome you to this channel known as Reach and Learn the Solution. जैसे आप जानते हैं कि हम कुछ दिनों से एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. Today in this video I will talk about one more topic that is very exam oriented, and it is a part of writing section, and it is what? It is letter writing, right? As I have already discussed two different letters. One is editorial letter and the other one is letter of complaint. Today in this video I will discuss how a letter of placing an order is written, right? Placing an order जो है उसको कैसे लिखी जाती है, today in this video we will know this one. So first of all, we will go to the board and we will have a question over there, and then while writing I will discuss everything the way one needs to follow while writing a letter of placing an order. But before going to do that, let me remind you one thing. Please do subscribe this channel and like and comment, and also do share with your friends so that they can get the benefits you are getting after watching this channel known as Reach and Learn. Okay, now coming to the point, let's take a question first, right, and then we will go further. So friends, see, here is a question. Now we will read it out first. पहले इसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे and then solve करेंगे. चलो देखते हैं पहले क्या लिखी हुई है. Let's see. You are राहुल कुमार. आप राहुल कुमार हैं. The librarian of SBGS फुलपरास. SBGS एक स्कूल है, संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल. आप उसी स्कूल के लाइब्रेरियन हैं, ठीक है. सपोज जस्ट इमेजिन दैट यू आर द लाइब्रेरियन. यू नीड बुक्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th. आपको बुक चाहिए स्टैंडर्ड 10th की अंडर CBSE बोर्ड, राइट. राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ द नेशनल बुक स्टॉल. आपको एक लेटर लिखनी है मैनेजर के पास, नेशनल बुक स्टॉल के मैनेजर के पास, राइट. कहाँ पे? पटना में है. प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द सेम. और उस बुक, जैसे आपको बुक चाहिए उसके लिए आपको एक ऑर्डर प्लेस करना होता है, ठीक है. तो चलो देखते हैं. ये फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट होते हैं. लेट्स फॉलो, लेट्स अप्लाई द फॉर्मेट ओवर हियर टू. ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड लेट्स राइट डाउन योर एड्रेस. आप लिख रहे हैं ना, तो आपका एड्रेस क्या है? आपका एड्रेस है SBGS फुलपरास. चलो लिखते हैं SBGS फुलपरास, राइट. ये फुलपरास कहाँ है? मधुबनी में है. मधुबनी. Done it is, right. You can also apply here. You can also write here the pin code. Okay, pin code you can write here. It is what? 847409. Though it is not mentioned, but if it is known to you, you can write, as it is your address. No, you very well know this. Now again, one line space you need to give, and then write down the date. Today it is 18, right? 18 Feb 2021 हो गया. नेक्स्ट अगेन एक लाइन छोड़नी है और आपको जो एड्रेस लिखना है जिसके पास आप भेजेंगे. किसके भेजना है? मैनेजर के पास. लिखो द मैनेजर. किसका मैनेजर? द नेशनल बुक स्टॉल की. उसके नीचे लिखना है, ठीक, द नेशनल बुक स्टॉल. बुक स्टॉल कहाँ है ये? इट इज़ देयर इन पटना, PATNA पटना, राइट. एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा गया, वो है आपका एक पिन कोड होगा यहाँ पर, ठीक है. पिन कोड सपोज मानते हैं 1 2 3 4 5 6. हमें नहीं पता ना पिन कोड, तो सिंपली एक लिए है गेस. जस्ट इमेजिन दैट इट इज़ द पिन कोड, कॉमा 1 2 3 4 5 6 हो गया. सो फर्स्ट क्या लिखे मैंने? आपका एड्रेस जो लिखते हैं उसका एड्रेस लिखना है. देन you need to mention the date, and then you need to mention the address of the receiver or address of the addressee, means to whom you are writing the letter, right.
and then you need to write down the subject. Okay, subject column sub, you can write in short, it is also nice enough, and then you need to give a column. Fine. Now let's see what can be the subject here. It is what, placing an order ना, किसके लिए प्लेस करना है, बुक्स के लिए, तो उसी को सब्जेक्ट लिखेंगे ना, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स। वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। सब्जेक्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आपको बस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अब जितने अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उतने जल्दी, उतने अच्छे से सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं इसको क्या लिखी जाए। आई नीड टू इरेज दिस एज देयर इज नो प्लेस एट ऑल टू राइट इट। ओके फाइन, चलो लिखते हैं फिर इसका, ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं। चलो, तो यहाँ पर पहले सैल्यूटेशन देना है, डियर सर, ठीक है। डियर सर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन की जाती है, राइट। नाउ यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। कॉमा जो है, कॉमा के नीचे से आपको लिखनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा नंबर लाए तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखा कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। इट इज व्हाट, दिस इज कौन, राहुल, राहुल कुमार, कॉमा द लाइब्रेरियन, LIBRARI, द लाइब्रेरियन ऑफ SBGS फुलपरास, फुलपरास, फुल स्टॉप, राइट। इनको क्या चाहिए, क्या खरीदना है, इनको बुक खरीदना है ना, तो सिंपली क्या होगा, I need to buy some books of standard 10th, comma CBSE, अंडर CBSE, राइट। CBSE बोर्ड के अंडर में जो बुक्स प्रिस्क्राइब की गई है उसी बुक को लेना है, राइट। नाउ सी, आई एम, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी प्लीज्ड टू place an order for the following, FOLL, following books, following, I am very pleased to place an order for the following books. I am very pleased to place an order for the following books to you as you have been offering, OFFERING, offering discount, as you have been offering what, discounts, ठीक है, डिस्काउंट्स दिया जा रहा है, उसी के लिए आप बहुत इंटरेस्टेड हो गए और आपको वहीं से बुक लेनी है ताकि डिस्काउंट्स मिले, राइट। अब जो बुक्स आपको चाहिए उसका एक लिस्ट बना देना है ताकि उनको भेजने में दिक्कत ना हो, ठीक है। वेरी सिंपल वे में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लुक एट दिस, द list of the books is mentioned below. Now see here, एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, LIST, लिस्ट। नंबर वन क्या बुक चाहिए आपको, इंग्लिश,
कौन सी बुक चाहिए, 2 पार्ट में है, ठीक है। आपको चाहिए फर्स्ट फ्लाइट, FIRST, फर्स्ट फ्लाइट। कितना चाहिए, नंबर ऑफ पीसेस 100 पीस, राइट। नंबर 2 में लिखेंगे इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चाहिए आपको 100 पीस, राइट। नंबर 3 इट इज मैथ्स चाहिए, ठीक है। मैथ्स ये कोई भी ले लेना, ठीक। NCERT, ओके, 100 पीस। सो द लिस्ट इज डन हियर, लिस्ट बन चुका है, राइट। अब आपको क्या लिखना है, बस सिंपली इसको कंक्लूड करना है, ठीक है। देखो कंक्लूड करने में ऐसा लिखना था, पेमेंट भी तो करना है ना आपको, अभी कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा चलता है, ठीक है। द पेमेंट विल बी मेड ऑन कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, राइट। अब यहाँ से कंक्लूड इसको आप कर सकते हैं, द लेटर इज डन, ओके। अब यहाँ पर डाउन द लेफ्ट साइड आपको क्या लिखना है, डाउन द लेफ्ट साइड राइट डाउन योर्स फेथफुली, जैसे लिखा जाता है योर्स फेथफुली, ओके। आपका नाम, आपको अब नाम क्या था, राहुल कुमार, लिखो यहाँ पर राहुल कुमार। अब अपना डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं, और डेजिग्नेशन क्या होगा, डेजिग्नेशन है क्या, द लाइब्रेरियन, ठीक है। सो दिस वे लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कैन बी रिटन, इजंट इट वेरी इजी। देखो मैंने यहाँ पर वर्ड्स शायद कम हो जाए, ठीक है, 100 वर्ड्स ना हो, बट मैंने कोशिश किया ये समझाने के लिए कि कितना आसानी से यहाँ पर लिखी जा सकती है। अब इसमें थोड़ा और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ओके, कि जो बुक्स चाहिए वो अच्छे कंडीशंस में होनी चाहिए, ये सब 2-3 सेंटेंस ऐड कर देंगे तो वर्ड्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस वे डू प्रैक्टिस राइटिंग लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइट, so that in examination you do not feel confused, right? That's all. Thank you so much for watching the video, and before quitting let me remind you again one thing: to subscribe, like and share. Thank you so much. Bye.